इंस्टेड की हम चैप्टर पढ़े, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं इन चैप्टर्स के, ठीक है? Okay, ma'am. तो वी स्टार्ट विद मैटर. तो we start with the fill-ups. First is the intermolecular spacing is dash in solids and dash in liquids and dash in gases. So how is the intermolecular spacing? Ma'am, intermolecular spacing is absent in solids. Yes, it's And the least, or we can say absent. and is most in gases. Yes, absent or least. And in liquids? It's a bit present. Okay, more. And in gases? It's mostly present. Yes, most we can say. Okay. So, Okay, ma'am. so next is define matter. Can you define matter? Can you define matter and what is its composition? Ma'am, matter is something which has space. It's something that Anything? has mass and takes up space. Very good. And And is made up of its composition? molecules. Matter is composed of tiny particles known as atoms. Right? Yes, ma'am. Okay, so can you name the 3 states of matter and can you define them? Ma'am? 3 states of matter. Can you Solid, define them liquid, with, gases. yes, can you define them with example? Ma'am, solids are shapes which are fixed with their shapes and Yes, don't, solids have definite shape, right? And definite volume. they don't have intermolecular spacing but intermolecular forces there in them. In liquids, what about liquids? Uh, Ma'am, liquid is a state of matter which can't keep its shape steady and but can keep its velocity and volume steady. Intermolecular spacing and intermolecular force is present in it but less. And what about the shape and volume of liquid? Do liquids have definite shape and volume? Ma'am? Liquids have definite shape and volume? Ma'am, they do not have a definite shape but they do have a definite volume. Very good. And what about gases? Ma'am, gases neither have definite shape nor a definite volume. Volume, very good. And can you give examples of all the 3? Ma'am? Can you give examples of all the 3? Ma'am, solid it is our pencil. Liquid is water. And the third gas Water, and can you give example anything else other than water? oil. Oil, milk. Okay, and gases?
Ma'am, oxygen Hmm. and carbon. Carbon dioxide and hydrogen, water vapor. So these all are examples of gases. So next is what is a molecule? Can you define molecule? Tomorrow is Ma'am, molecules are weaker particles than atoms, which are independent. molecules are the smallest unit of matter which exist independently. Yes, ma'am. Okay. And the example of matter? Ma'am, Example of molecule? ma'am, an example of molecules are ammonia, Ammonia, carbon dioxide, NH3, carbon dioxide, oxygen. So oxygen molecule here, oxygen have two atoms. Oxygen is made up of two oxygen atoms. Carbon dioxide is made up of one atom of carbon and two atoms of oxygen, right? Now, Mr. Yesterday, which exam was there? ma'am, English one. English Today, land. ma'am? Yesterday, your exam started from 28th, right? Yes, ma'am, yesterday. So yesterday was English, No, ma'am, Kannada. Kannada. Okay. So how's the exam? It was easy, ma'am. Okay. And today, is there any exam? Today was there, ma'am, English. And English. tomorrow it is chemistry. Okay. How was English exam? Ma'am, it was easy, ma'am. The composition was less. Okay. What all questions you had? Ma'am? What all questions you had? So you have grammar part today in English land. Yes, ma'am. Okay. Then composition, comprehension was there. In composition, which topic did you choose? Mm, On which topic did you wrote? ma'am, I wrote on my childhood memories. The topic was childhood memories, so I wrote some Okay. memories. So Okay. 200 to 250 words. Okay. Okay. And comprehension was there? No, ma'am. And message writing, notice writing, letter writing, all these. Is there? Yes, Ma'am? no. Do you have message writing, notice writing, Yes, ma'am. letter writing? Yes, ma'am. Okay. Okay. So now next question is, what do you mean by intermolecular force? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग, ये बता दो चलो. What do you understand by intermolecular spacing? Ma'am, intermolecular space is a space between molecules and matter. The space between any two consecutive molecules of a substance. So molecules which are come one after the other. So the spacing between any two consecutive molecules of a substance is known as intermolecular space. Okay. Okay, ma'am. And what do you understand by intermolecular force? Yes, Navishta? Intermolecular force क्या होता है? Ma'am, intermolecular force is a force between molecules and matter. The force of attraction between the molecules. So it is the force of attraction between the molecules. Okay, the molecules can be like molecules or unlike molecules. Okay, so it is known as intermolecular force.
Next, what do you understand by forces of cohesion and adhesion? कोहेशन तो है ना, एडेशन है? No, ma'am. कोहेशन है ना? Cohesion, no, ma'am. कोहेशन नहीं था? No, ma'am. ओके ओके। if the molecules in a substance are in motion, what type of path do they follow? If the molecules in a substance are in motion, what type of path do they follow? Is it straight? It is zigzag? We have last time when we did the question answer of this chapter, we read it. हाँ, जब हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आंसर किए थे इस चैप्टर के, तब हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के आर नॉट एट रेस्ट, ठीक है, वो हमेशा मोशन में होते हैं। सो दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। सो वो किस पाथ में होते हैं? जिगजैग पाथ में। Zigzag path. रिमेम्बर हमने किया था पहले भी, Yes, ma'am. जिगजैग पाथ। Ma'am. हाँ यस नविशा, अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखती हूँ सॉलिड लिक्विड गैस की, मतलब प्रॉपर्टीज लिखूंगी, आपको तीनों में बताना है कि वो प्रॉपर्टीज कैसे होती है तीनों में, ठीक है? सॉलिड लिक्विड गैस। Ma'am, I have to say more or less, right? नहीं, हाँ आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, तो ये बताओ। Absent. इन सॉलिड्स इज नॉट प्रेजेंट, राइट? लिक्विड्स, लिक्विड्स में होती है कंप्रेसिबिलिटी। यस नविष्ठा? Ma'am, compressibility was absent in solid, present in liquid and present in gases. में प्रेजेंट होता है, गैसेस में भी प्रेजेंट होता है। इसमें थोड़ा Fluid is absent in लेस होता है, हाँ इतना नहीं होता, इसके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, गैसेस में। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी बताओ सॉलिड्स में। यस नविष्ठा, व्हाट अबाउट फ्लूइडिटी? absent in solid and present in liquid and gas. ओके, राइट। रिजिडिटी? Present in solid, absent in liquid and gas. इसमें हम बोलते हैं कि हाईली रिजिड हाई होती है और इसके अंदर लेस होती है, लेस रिजिड, और इसके अंदर नॉट रिजिड, राइट? इसमें नहीं होती प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। Expansion on हीटिंग, तो सॉलिड्स में क्या होता है? yes. हाँ, Yes. लो लो होता है। लिक्विड्स में No. more than solids. Expansion on heating, so more than solids.
और गैसेस में mm, मोर देन लिक्विड. ठीक है. ओके ना इसका. okay, ma'am. नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है नविष्का तुम्हारे बुक में. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. Mm, What do you understand by melting point and what do you understand by boiling point? ma'am, melting point is when an frozen object melts, and a boiling point is when a normal temperature hot water boils. तो इसमें हीट भी तो यूज हो रहा है राइट. हीट एब्जॉर्प्शन अगर होगी सॉलिड में तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा राइट. So the process of change of a substance from solid state into liquid state on absorption of heat at a particular temperature उसको हम कहते हैं melting point. ठीक है. अब जैसे solids है उसमें heat absorb तो ये मेल्ट होगा सॉलिड लिक्विड से. ओके. हीटिंग के थ्रू. और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है जो लिक्विड है वो तो बॉईल करेंगे लिक्विड को तो क्या होगा. हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा नविष्का. यस नविष्का. लिक्विड किस में फॉर्म होगा. Gas. यस गैस में राइट. Yes, अब जो ma'am. मेल्टिंग वाला होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है. मेल्टिंग को हम और क्या वर्ड कह सकते हैं. मेल्टिंग एंड फ्यूजन. फ्यूजन. और जो बॉइलिंग होता है बॉइलिंग को हम और क्या वर्ड बोल सकते हैं. वेपराइजेशन. ठीक है. ओके नविष्का गॉट इट. Got it, ma'am. चलो अभी हम वाटर वाला चैप्टर को करते हैं. ठीक है. वाटर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं डिस्कस. So now okay. So can you tell in which form is water present in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. यस नविष्ठा. Yes, ma'am. Water is present in which form in the atmosphere. Any idea or you don't know? Ma'am? In which form water is present in the atmosphere? Gas, water vapor. Water vapor, right? Yes, ma'am. अभी तुम्हारा ध्यान नहीं है. No, ma'am, I forgot. Huh? I forgot. You forgot. Okay. So now next question is which source of water contains the highest concentration of salt in it? So which source of water have highest concentration of salt? Can you tell the sources of water? Ma'am,
Ma'am, underground On and nat surface. हाँ, sea water, yes, sea water, surface water, above surface water and underground water, right? ठीक है. तो जो surface water होता है उसके सोर्सेस बताओ surface water के. Surface water, lakes, ponds, rivers, and oceans. और अंडरग्राउंड वाटर की. यस नविष्ठा, अंडरग्राउंड वाटर. Groundwater. तो तुम बता सकते हो कि कौन सा सोर्स ऑफ वाटर है जिसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है, सॉल्टी वाटर होता है उसका. Ocean. यस, तो सी वाटर. ठीक है. Ma'am, but in ocean also it's there, right? We can यस see large bodies of surface water. यस करेक्ट. So your next question is, why is rainwater considered the purest form of natural water? हम क्यों बोलते हैं रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? Ma'am? हम रेन वाटर को क्यों बोलते, why do we say rain water as the purest form of water? Ma'am, because it directly falls from the sky to the lakes. Yes, because water from surface of earth has evaporated and then vapors condenses in the atmosphere, क्योंकि वो distilled water होता है. ठीक है. So next question, what possible impurities does rainwater contain? कौन सी impurities होती हैं रेन वाटर में? Ma'am, mixed gases. Mixed gases, okay. And mixed gases, can you tell what kind of gases? Ma'am? Can you tell what type of gases? Which gases? नविष्ठा बी क्विक. तुम इतना क्यों सोच रहे हो, इतना ये पता है तुम्हें फिर भी आंसर नहीं कर रहे फटाफट. Ma'am, I don't know. गैसेस कौन सी होती हैं रेन वाटर में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होंगी वही तो गैसेस होंगी, राइट? Yes, तो ma'am. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, डस्ट होता है रेन वाटर में. ठीक है. Okay, ma'am. अब ये बताओ, नेक्स्ट, रिवर वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं? इम्प्योरिटीज इन रिवर वाटर. Yes, Navishta, can you tell what are the impurities present in river water? Ma'am, dust particles which are in the air that will only come in the rainwater. तो हम उनको सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कह सकते हैं, लाइक क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स. ठीक है. Particles, ma'am? रिवर वाटर में जो बीनीथ, जो सैंड और क्ले वाटर, मतलब सैंड और जो और इम्प्योरिटीज होती हैं वो सबसे नीचे जमा हो जाती हैं, राइट? पानी ऊपर रहता है, राइट? तो ये क्या होता है, सैंडी वाटर कह लो. सैंड होता है इसमें, सैंड पार्टिकल्स होते हैं. और क्या होता है ना इसका रिवर वाटर में, और इम्प्योरिटीज? हार्मफुल बैक्टीरिया. यस, हार्मफुल बैक्टीरिया. ठीक है. और क्या होता है, मिनरल सॉल्ट्स. ठीक है.
Next is, can you tell how clouds are formed? Clouds कैसे बनते हैं? Ma'am, those are water vapor. हाँ, उसको कैसे डिफाइन करोगे कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? Ma'am, when evaporation happens, the water, इवेपोरेशन जो होती है वो कहाँ से होती है? व्हाट आर द सोर्सेस? sun, हाँ, इवेपोरेट तो सन कर रहा होता है, पर वो वाटर कहाँ से ले रहा होता है? ma'am, surface. सरफेस से। सो कहाँ से? लेक से, रिवर्स से, सी से, ये सोर्सेज होते हैं ना। तो वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, लेक्स, ठीक है, अर्थ के सरफेस से, लेक से, सी से, रिवर से, ठीक है। और जो प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है वो सब इवेपोरेट हो जाता है, राइट, एंड राइजेस हाई इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो जब वो कंडेंस होता है, सो इट कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड कलेक्ट टू फॉर्म क्लाउड्स, ठीक है। Okay, ma'am. समझ में आया अनुष्का? Okay, ma'am. नेक्स्ट, डू यू हैव वाटर साइकिल इन दिस चैप्टर? No, ma'am. ओके, कैन यू डिफाइन फॉग? फॉग है? फॉग क्या होता है? यस अनुष्का, फॉग क्या होता है, कैसे होता है फॉग? Ma'am, I don't know about fog. ओके, सो When the clouds come on the surface, maybe? नहीं, क्लाउड्स क्यों आ जाएंगे सरफेस पे? क्लाउड्स कोई सरफेस पे आते हैं हमारे? Ma'am, our teacher said that this can be one. नहीं, क्लाउड्स थोड़ी सरफेस पे आते हैं हमारे, वाटर वेपर होते हैं। सो व्हेन वाटर वेपर चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नियर द ग्राउंड, ठीक है, जब वाटर वेपर जो होते हैं चेंज इनटू टाइनी droplets of water near the ground, तो fog form होता है, ठीक है। Okay, ma'am. Have you seen fog? Winters में आपने देखा है fog? Yes, नविष्ठा? Winter fog, what is that, ma'am? नहीं, आप जहाँ पे आप रहते हो वहां पे जब विंटर्स आते हैं आपके इधर, कितना टेम्परेचर तक रहता है आपके यहाँ पे, या आपके यहाँ समर्स ज्यादा होते हैं? Ma'am, summer will be more here. ओके, Ma'am, सो I can't say because I don't know at which हाँ, temperature. बिकॉज आपने फॉग माइट भी, उधर हॉट टेम्परेचर होता है, इतना कूल नहीं होता कि फॉग फॉर्म हो सके, इसलिए आपने फॉग नहीं देखा होगा माइट भी, ठीक है। Ma'am, what is fog? फॉग क्या होता? Ma'am, हाँ, what is fog? फॉग क्या होता है, जब जब विंटर्स आते हैं, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं, राइट, तो वो क्या होते हैं, जब अर्थ के पास, वो सॉरी, जब हमारे सरफेस के पास आते हैं यहाँ, तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं वाटर के। सो फॉग जब होता है ना, तो एकदम क्लियरली विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, ठीक है, हम क्लियर देख नहीं सकते आसपास। और जैसे ही फिर सन आता है, ठीक है, सन आता है सुबह, तो वो फॉग क्लियर हो जाता है, ठीक है, सन आता है तो फॉग हट जाता है, मतलब वो जो एकदम इनविजिबल सा हो जाता है, थोड़ा क्लियरली दिख नहीं पाता जब तक हम किसी भी चीज के पास नहीं जाए ना। अब जैसे हम बाहर रोड पर चल रहे होते हैं, तो हमको व्हीकल्स इतने साफ दिखाई नहीं देते जब फॉग होता है। तो क्या है, जब तक हम व्हीकल के पास नहीं चले जाते तब तक हमको वो दिखाई नहीं देता, तो थोड़ी क्लैरिटी कम होती है जब फॉग होता है, ठीक है, ठीक है। अभी बताओ कि मिस्ट क्या होता है? Uh, Ma'am, I don't know. ये वाला तुम्हारे बुक में है ना, इसका?
नहीं है तो छोड़ो, तुमने मेरे को बताया कि नहीं है कि पहले कर। यस अनुष्का, अभी बताओ। नेम द टू केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो हम कौन से दो केमिकल्स यूज करते हैं जिससे हम जर्म्स जो होते हैं पानी में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कैन यू नेम द टू केमिकल्स? In which, ma'am? Two chemicals that are used to kill germs in water. Chlorine. Chlorine, very good. Potassium permanganate. Okay. Potassium Potassium permanganate. permanganate. ठीक है, अब बताओ। एक सेकंड नविष्ठा, एक सेकंड होल्ड करना। Yes, Namaskar. Next is, can you tell two diseases which are spread through impure water? Impure water से क्या diseases spread हो सकते हैं? मैम डायरिया, मलेरिया। मलेरिया impure water से होता है मलेरिया? डायरिया डायरिया कह सकते हो, हाँ। कॉलेरा, कॉलेरा, हाँ कॉलेरा डायरिया कह सकते हो, हाँ। अभी नेक्स्ट बताओ कि two household methods to get safe drinking water. कौन से दो हाउस होल्ड मेथड्स होंगे जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं? क्या क्या हम उसमें डाल सकते हैं वाटर में? क्लोरीन टैबलेट्स, ठीक है। सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम बना सकते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं क्लोरीन टैबलेट्स, और बाय एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, ठीक है। ओके नमस्कार, चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज रिवर वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग? रिवर वाटर क्यों अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए? अभी हमने बात की थी ना कि रिवर वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं। रिवर वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज थी जो हमने अभी डिस्कस की थी? कि उसमें सैंड होता है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया होता है, राइट। हाँ, तो इसलिए वो फिट नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए। उसके बाद टैप वाटर जो होता है वो किस चीज का मिक्सचर होता है? टैप वाटर जो होता है हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है? मैम उसमें क्लोरीन होता है। क्लोरीन होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं थोड़ा बहुत, राइट। ऑल इम्प्योरिटीज भी होती हैं, डिपेंड्स ऑन प्लेस, राइट, कि उस प्लेस पे क्या इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में मिक्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मिनरल वाटर क्या होता है? व्हाट इज मिनरल वाटर?
So mineral water is pure water that is fit for drinking, right? It is collected from natural sources and it contains air, minerals, and salt which are free from suspended impurities, harmful bacteria and germs. ठीक है. अब नेक्स्ट बताओ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग ब्लीचिंग पाउडर टू वाटर सप्लाइड टू द टाउन. ब्लीचिंग पाउडर क्यों ऐड करते हैं वाटर में? Ma'am, I don't know. ओके, एडिंग ब्लीचिंग Powder we पाउडर. add in water. हाँ, ये इसलिए ऐड करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बिकॉज it kills germs and harmful bacteria and viruses that are present in water. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, हाउ इज वाटर इन स्विमिंग पूल केप्ट फ्री ऑफ जर्म्स. स्विमिंग पूल में कैसे जर्म्स से फ्री रखा जाता है वाटर को? Chlorine डाल के. राइट. तो treating water with chlorine gas, right? Chlorination से. Sterilization क्या होता है? Anushka, what do you mean by sterilization? It is the process of removal of microorganisms from water to avoid waterborne diseases. ठीक है. उसके बाद बताओ सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन तुमने बताया था मेरे को. Ma'am, sedimentation is when the dust particles which can be insoluble Cannot be dissolved in water, so it settle down at the bottom of the liquid. ठीक है, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, राइट. चलो थर्ड चैप्टर कौन सा कह रहे थे नविष्ठा? एक और चैप्टर, एयर एंड atmosphere. एयर एंड एटमॉस्फेयर. ओके, अब बताओ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? Ma'am, atmosphere is a layer of our earth which is outside of our earth, which is like a blanket consisting of 5 layers contained with air. The earth is surrounded by a thick layer of air which is called the atmosphere, right? अब ये बताओ कि हम why can't we see air? हम क्यों नहीं देख पाते एयर को? Why can't we see air? Yes, Navishka. हाँ नविष्का. We can't see air because it is colorless, odorless and transparent gaseous matter. Feel air. हाँ, we can only feel air, right? Wind किसको कहते हैं नविष्का? What is wind? Mom, What do you understand by wind? Wind किसको कहते हैं? Wind. Mom, it is a strong force of air blowing. Yes, it is the fast moving air. ठीक है. Next is what are the main components of air? हाँ नविष्का. Mom, Main components of air. Mom, nitrogen 78%,
10% oxygen, 28 carbon dioxide, 0.03. ऑक्सीजन 21 और 28 right ma'am. हाँ 28. 28 हो गया तो फिर वो 100 से ऊपर नहीं चला जाएगा इसमें इसका। अगर ये 78 है इसमें 28 प्लस कर देंगे तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा। हमको विद इन 100 ही बताना है तो ये 21 होता है ऑक्सीजन। ठीक है ऑक्सीजन और कार्बन Ma'am, डाइऑक्साइड 21.8 maybe because I remember ma'am saying it. ओके 21.8 ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बताए 0.03 से 0.04% के बीच। ठीक है और क्या क्या होता है एयर में इनर्ट गैसेस एंड वाटर वेपर होते हैं राइट वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स राइट। Yes ma'am. अच्छा बताओ कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन सो आई एम टेलिंग यू फ्यू ऑब्जर्वेशंस तो तुम्हें उसको बताना है कि अगर ऐसा देखोगे तो क्या होएगा। और जैसे फर्स्ट है आइस कोल्ड वाटर इज फिल्ड इन अ ग्लास टम्बलर। अगर आइस कोल्ड वाटर अगर ग्लास टम्बलर में फिल हो रखा है तो क्या ऑब्जर्व करोगे तुम। अब ये बताओ अच्छा एक अगर तुम्हारे घर पर एक ग्लास में आइस वाटर रखा है ठंडा पानी रखा है आइस कोल्ड वाटर तो क्या ऑब्जर्व करोगे तुम। अनुष्का Uh, Inert gases, water vapor and dust particles and more gases than that. अच्छा अगर अगर एक वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा वो अगर एक ग्लास में हमने वाटर रखा हुआ है ठीक है कोल्ड वाटर तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे अगर ठंडा पानी डाला एक ग्लास में तो उसके बाहर टाइनी ड्रॉप्स आ जाते हैं वाटर के राइट अगर पानी ठंडा है अंदर तो होता है ऐसा फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ना इसमें ऐसा कि अगर Yes. फ्रिज हाँ तो तुम ये क्या ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तुम इसी में ही घूम रहे हो अभी तक। चलो अब सेकंड बताओ तुम क्या ऑब्जर्व करोगे अगर अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद एन इन्वर्टेड जार। अगर जो बर्निंग कैंडल है एक बर्निंग कैंडल है उसके ऊपर हमने जार रख दिया कोई उसको बंद कर दिया उसके ऊपर जार रख दिया तो क्या ऑब्जर्व करोगे तुम। The candle will burn more brightly because candle gets oxygen support in burning. Okay, ये और brightly जलेगी because इसको ऑक्सीजन सपोर्ट मिल गया है। ऑक्सीजन अब कहीं जा नहीं रही है राइट बिकॉज उसके ऊपर जार रख दिया तो ऑक्सीजन इसमें पैक हो गई। अब बताओ कि अगर what will happen when a beam of light is allowed to enter in a closed dark room through a small hole। अगर एक स्मॉल होल से बीम ऑफ लाइट एंटर होती है तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे। यहाँ से अगर लाइट आई और जैसे अंदर जा रही है तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे। हैव यू सीन डस्ट पार्टिकल्स इन लाइट छोटे Yes से ma'am. तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे कि रैंडमली मूविंग डस्ट पार्टिकल्स इन द बीम ऑफ लाइट। कभी कभी देखा है जैसे सन आता है सुबह तो वो जैसे ही एकदम से आता है और छोटी एकदम ऐसे ही
फाइन छोटा एरिया से एकदम आ रहा हो, उसके बाद हम उसको देखते हैं तो उसमें भी हमको फाइन डस्ट पार्टिकल्स ऑब्जर्व होते हैं. हैव यू सीन दैट? यस Ma'am? नविष्का, हैव यू सीन? No, ma'am. ओके. तो नविष्का ठीक है, अब तुम और इसका प्रैक्टिस करो. ठीक है, कल व्हेन आर यू हैविंग योर एग्जाम? टुमारो ना, ऑफ केमिस्ट्री? नविष्का कल है ना आपका एग्जाम? Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट स्टडिंग मोर. तो वी विल मीट टुमारो एट 5. ओके. अब तुम्हारा किसके एग्जाम है नविष्का इसके बाद? History and civics, ma'am. ओके, उसके बाद? Uh, after that, ma'am, it is English too. And after that, it's maths. ओके, फिर हम कल से मैथ्स पढ़ेंगे. ठीक है. Okay, ma'am. ओके, चलो कल मिलते हैं. ठीक है, प्रैक्टिस करो इसका, पढ़ाई करना. ठीक है, Okay, ma'am. चलो, ऑल द बेस्ट, बाय. Bye, ma'am. Have a nice day. यू टू, बाय.